ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ قرب الہی تک جانے کا ہر ایک رستہ روشن، بہت اچھے، سبحان اللہ، زندہ باد، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ روشن ہے قرب الہی تک جانے کا۔ عمرانی کی منازلوں کو طے کر رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہر کیف وقت کافی ہوا چلا، پھر شعلہ دعویٰ وائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تابہ، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بہر خطابت چلے آئیے۔ مائک پر ہے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر بیان سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ایک اعلان اور کرتا چلوں بھائی، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا مشير له ولا معين له، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نحل والد ولدت من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، دینی بھائیوں، بزرگوں، سوچ کر میں کچھ آیا تھا، لیکن مجھے پیش کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ماہ ذی الحجہ آنے والا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کو سناؤں۔
لیکن ماشاءاللہ مجمع بہت اچھے طریقے سے بات سن رہا ہے، تو میں اپنا عنوان جو سوچ کر آیا ہوں اس کو بدلنا چاہتا ہوں، اور اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے، جو ہمارے معاشرے کو، سماج کو، اس عنوان پر کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، لمبی گفتگو کرنے کا نہ تو موقع ہے نہ وقت اجازت دے رہا ہے، اور بہت مختصر سی گفتگو آپ سے کروں گا، لیکن کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مختصر گفتگو اور جامع گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ شکایت کریں کہ آج مسلمان پریشان ہے، حالات سے دوچار ہے، تکالیف جھیل رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں، دینی بھائیوں، بزرگوں، اس کے قصوروار ہم سب ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عافیت، سکون، اطمینان ہماری زندگی میں آئے اور اچھی زندگی ہم گزاریں، ہم سب کا یہ خیال ہوتا ہے، لیکن سچی بات یہی ہے، اگر مسلمان عزت کی زندگی چاہتا ہے تو مسلمانوں کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا نام مسلمانی نام ہو، خالد نام، راشد نام، عبد الرحمن نام، ہمارے نام اچھے ہیں، عورتوں نے اپنے نام، ان کے اچھے نام ہیں، بچیوں کے اچھے نام ہیں، لیکن عزیز اور دینی بھائیوں، نام کے اچھے ہونے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کام کب چلے گا؟ کام اس وقت میں چلے گا کہ جب ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہو، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہماری زندگی میں اسلام ہو، ہماری زندگی میں قرآن ہو۔ نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، ہماری زندگی میں وہ چیزیں آ جائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا گیا ہے، ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں، میرے بھائیوں، اس وقت میں کام چلے گا، اس وقت عزت کی، رفعت کی زندگی انسان گزارے گا۔ آپ اور ہم یہ خیال کریں کہ ہم مسلمانوں کی بستی میں پیدا ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی اسلامی نام رکھنے کی وجہ سے مغفرت کے فیصلے فرما دے گا، اللہ کامیابی عطا فرما دے گا، اللہ بلندی عطا فرما دے گا۔ یاد رکھ لینا، علماء کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، مسلمان قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک اس کی زندگی میں اسلام نہ آ جائے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہ گزارے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اسلام کے مطابق نہ گزارے۔ آپ دیکھیے کہ معاشرہ، آج سماج ہمارا کتنے پرسنٹ افراد ایسے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں، کتنے اشخاص ایسے ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں قرآن ہے، ان کی زندگی میں نبی کی تعلیم ہے۔ آپ کو گنے چنے افراد مل جائیں گے، اور پھر ہم سوچیں کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے۔ نہیں، اسلام کے ساتھ عزت ہے۔ جو قوم
कुरान को छोड़ती है, जो कौम कुरान से अपने रिश्ते को तोड़ लेती है और जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस से कट जाता है, वो कौम ये सोचे कि तुझे इज्जत मिलेगी, मेरे भाइयों उस कौम को इज्जत मिलने वाली नहीं होती। इसलिए मेरे अजीजों दीनी भाइयों, सबसे पहले मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे आपसे और अपने से शिकायत है कि आपकी और मेरी 24 घंटे की जिंदगी में कुरान क्यों नहीं, नबी का फरमान क्यों नहीं, हमारी जिंदगी अल्लाह के नबी की जिंदगी के मुताबिक क्यों नहीं, मेरी माँ और बहनों की जिंदगी अम्मा आयशा की जिंदगी के मुताबिक क्यों नहीं, अम्मा और इसी तरह जो अज़वाज मुतहरात है उनकी जिंदगी के मुताबिक हमारी माँ और बहनों की जिंदगी क्यों नहीं, हजरत फातिमा की जिंदगी के मुताबिक हमारी माँ क्यों जिंदगी नहीं गुजार रही हैं और हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, सुबह से शाम तक करते रहे, शाम से सुबह तक करते रहे। नियत लगाए अल्लाह मगफिरत फरमाएंगे, नियत लगाए अल्लाह हमसे राजी होंगे, नियत करें कि अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। खुदा की कसम ऐसी कौम पर कि जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करे, जो कौम अल्लाह उसके रसूल को नाराज करे, जो कौम गुटखे खाकर पूरे दिन बेहोश रहे, जो कौम शराब पिए, जो कौम सट्टा खेले, जो कौम जुआ खेले, जो कौम अय्याशी करे, जो कौम मक्कारी करे और वो कौम सोचे कि अल्लाह की जानिब से मदद और नुसरत होगी, फरिश्ते मदद के लिए आएंगे। ना मेरे भाइयों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। आपकी जिंदगी में, बहू की जिंदगी में, छोटों की जिंदगी में, माँ की जिंदगी में, बहनों की जिंदगी में अगर कुरान हदीस है तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब है, वरना हमारी जिंदगी कामयाब नहीं और नाकामयाबी के साथ गुजर सकती है। इसलिए मैं कौम के नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से और अपने भाइयों से ये बात कह देना चाहता हूँ, ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपनी 24 घंटे की जिंदगी में अपने आप पर इस्लाम को नाफिज कर लो, कामयाबी तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगी। अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके पर चला लो, सुन्नत हदीस के मुताबिक चलाने वाले जाओ, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे, बुलंदी अता फरमाएंगे, सुकून अता फरमाएंगे, रिफत अता फरमाएंगे, इज्जत की जिंदगी अता फरमाएंगे। एक काम तो आपको ये करना है, अगर आप माशरे समाज में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने आप को, अपनी आने वाली नस्ल को तालीम से, एजुकेशन से जोड़ना है। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा अपनी जिंदगी में तालीम, अपनी जिंदगी में कुरान, अपनी जिंदगी में हदीस, इन तमाम चीजों को पैदा करे। हमारा बच्चा स्कूली लाइन से पढ़ना चाहता है, असील उलूम हासिल करना चाहता है, शौक से हासिल करे और कराइए, खूब पढ़ाइए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन हमारे अकाबिर बुजुर्गाने दीन ये बात कहते हैं और कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान हदीस सिखाना है, कि हमारे बच्चों की जिंदगी में कुरान हो, हमारे नौजवानों की जिंदगी में कुरान हो, हमारी बच्चियों की जिंदगी में कुरान हो। सबसे पहले कुरान सिखाओ, कुरान से जोड़ो, कुरान पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ। लेकिन हाल क्या बना हुआ है? हाल ये बना हुआ है कि आज हमारे बच्चे, मेरे भाइयों, कहां तालीम हासिल कर रहे हैं, कहां जानते हैं कुरान, कहां जानते हैं नमाज, कहां जानते हैं रोजा, कहां जानते हैं ज़कात। हाल तो ये बना हुआ है कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन बेटा बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटा बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है?
इसलिए नहीं पढ़ रहा है, उसको नमाज जनाजा में क्या दुआ पढ़ी जाती है वो याद नहीं, वो नमाज जनाजा का तरीका जानता नहीं, इसलिए वो अपने बाप की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ रहा है। ए कौम के नौजवानों, हम कैसा मुआशरा और कैसा समाज तैयार कर रहे हैं कि आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे समाज में ऐसे नौजवान हैं कि बाप की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बाप पढ़ाता, तालीम देता, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ता तो खुदा की कसम ये बच्चे तालीम से जुड़ते और ये नौजवान ये कहता कि ये मेरे बाप का जनाजा, जिस बाप ने मेरे लिए तकालीफ झेली, तकालीफ को बर्दाश्त किया और न जाने कितनी और किस किस अंदाज की कुर्बानी मेरे बाप ने मेरे साथ दी है, इसलिए अपने बाप को गुस्ल मैं दूंगा, नहलाऊंगा अपने बाप को बजाते खुद, और इसी तरह अपने बाप की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपने बाप को कब्रिस्तान पहुंचाऊंगा, कब्र में अपने हाथ से अपने बाप को उतारूंगा। ये कब समझेगा बच्चा कि जब बच्चा कुरान हदीस मदरसे में आएगा तभी समझ पाएगा। तो आज हमारी दीनी तालीम की हालत ये, बल्कि इस पर बस नहीं, हमारे बच्चों को ये तक मालूम नहीं कि हम किसकी उम्मत में हैं, किसके बंदे हैं। कितने नौजवानों से, कितने बच्चों से ये बात मालूम की जाए कि बताओ तुम किसकी उम्मत में हैं, तो ये बच्चे बड़े बहुत से नहीं बता पाते हैं कि वो ये बताएं कि किसकी उम्मत में है, किस रब को, किस रब से तुम्हारा ताल्लुक है, कौन से, किसको तुम मानने वाले हो, किस खुदा के सामने सजदा करने वाले हो, किसके तुम बंदे हो, ये कुछ मालूम नहीं होता है। अगर हम इस मजमे से मालूम करें, बहुत से लोगों से मालूम किया, बहुत से बच्चों से मालूम किया, जिनको ये मालूम नहीं है उनसे कहा गया कि बताओ तुम किसके बंदे हो, तो कोई अपने बाप का बताता है, कोई अपने दादा का बताता है। ये माशरा और ये समाज है, रब का मालूम नहीं, रब की इबादत किस अंदाज से की जाए ये बात मालूम नहीं, पैगंबर की माँ का नाम क्या है ये मालूम नहीं, पैगंबर के बाप का नाम क्या ये मालूम नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए, मदीने में पैदा हुए, हमारे नौजवानों को ये मालूम नहीं। ए मेरे कौम के नौजवानों, बताओ जब हमारी इस आने वाली नस्ल को ये बात मालूम नहीं कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में पैदा हुए हैं, मदीने में पैदा हुए हैं, नबी की माँ का नाम क्या है, नबी के बाप का नाम क्या है, तो ये कौम के जो नबी की सीरत को नहीं जानती है, नबी के अखलाक को नहीं जानती है, तो क्या मेरे भाइयों ये कौम को तालीम हासिल कर रही है, इसकी जिंदगी में कुरान और हदीस किस दर्जे का है आप खुद समझ जाइए। माएं, बहनें, कहां तालीम और कहां तरबियत। हमारी माओं को, हमारी बहनों को माफ करना बुरा लगे, उनको फुर्सत नहीं मोबाइल चलाने से, बच्चों की तरबियत की कहां फिक्र, न बाप को फिक्र है न मां को फिक्र है। बाप ने ये समझा कि तू कमाने की मशीन, सुबह में बाप निकला, शाम में घर में आकर पड़ा, और जब घर में आकर वो दाखिल घर में आ जाता है, दाखिल हो जाता है, खाना खा लेता है, उसको कोई परवाह नहीं मेरा बच्चा स्कूल गया था या नहीं, मदरसे गया है या नहीं, न मां को परवाह है, न बाप को परवाह है, न बड़े को परवाह है, न छोटे को परवाह है। जिस कौम और जिस समाज और जिस माशरे के नौजवानों का, बाप का, माँ का, बुजुर्गों का हाल ये हो, वो कौम कहां से तरक्की कर सकती है, कहां उस कौम के पास तरक्की आ सकती है। ए मेरी माएं, मेरी बहनें, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, ऐसी तरबियत कीजिए जैसी तरबियत करने का हुक्म दिया गया है। आप अगर पेट से हैं, आप अल्लाह का कुरान पढ़िए,
आपकी ज़बान पर अल्लाह का कुरान हो, आपकी जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम हो, आपकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो, आप हामिला हैं, आप पेट से हैं, खुदा की कसम ये बच्चा कि जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस दुनिया में आएगा, अगर माँ की ये तरबियत का अंदाज, माँ का ये जज्बा, माँ का ये शौक, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज वक्त आएगा कि ये बच्चा अल्लाह का वली बनेगा, ये कुतुब बनेगा, ये अब्दाल में से होगा, अल्लाह का नेक बंदा होगा, ये साले होगा, ये तहज्जुद गुजार बनेगा। जब माँ हामिला होने की हालत में गाने सुनती है, फिल्में देखती है, नाटक देखती है और न जाने अपने आप को किन किन चीजों के हवाले किए हुए है। सोचे कि मेरी कोख से पैदा होने वाला बच्चा इमाम ग़ज़ाली होगा, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी होगा और मौलाना कासिम नानोतवी होगा, अल्लाह का नेक बंदा होगा। ए मेरी माँ कान खोल कर सुन ले, खुदा की कसम तेरी ये खाम ख्याली है, रब की नाफरमानी कर रही है, रब को नाराज कर रही है, रब की नाराजगी मोल ले रही है। सोचे कि तेरा बच्चा नेक को सालेह बनेगा, वक्त का वली होगा। ना ना, ऐसी माओ की कोख से अल्लाह के वली पैदा नहीं होते, अल्लाह के नेक बंदे पैदा नहीं होते, उन माओ की कोख से पैदा होते हैं कि जो हमल की हालत में कुरान पढ़ती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं, तिलावत करती हैं। उन माओ की कोख से अल्लाह के वली पैदा होते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बावजू होकर दूध पिला रही है। आप और हम ये समझते हैं कि माँ दूध पिला रही है। ए मेरे भाइयों, हाँ माँ दूध पिलाती है, लेकिन माँ सिर्फ दूध नहीं पिला रही है, माँ दूध के जरिए से अपना इस्लामी ज़हन, अपना तौर तरीक, अपनी तहजीब, अपने अखलाक और अब माँ की जिंदगी में जो चीज है वो तमाम की तमाम चीज दूध के जरिए से बच्चे के ज़हन और दिमाग में मुंतकिल हो रही है। लेकिन माँ की हालत क्या है? दूध पिला रही है, फिल्में चल रही है, गाने सुन रही है, कानों से लीड लगी हुई है। अब तो अगर किचन में मेरी माँ है तब भी गाने उसको चाहिए, दूध बच्चे को पिला रही है तब भी गाने चाहिए, रात की तारीकी में गाने चाहिए। आज से पहले, चंद साल पहले हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ इस अंदाज की हुआ करती थी कि रात के वक्त में अपने बच्चों को अपने पास में बुलाकर साहबा और साहबियात के वाक़ियात सुनाया करती थी, अच्छी बातें बताया करती थी, अच्छी चीजें सिखाया करती थी। लेकिन कहाँ मेरी माँ और मेरे नौजवान भाई अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में उतार रहे हैं और हम सोचें कि अल्लाह के नेक बंदे होंगे। ना मेरी भाई, अपने आप को नेक बना लो। ये चंद दिन की जिंदगी है, ये चंद दिन की खूबसूरत सूरती है और ये चंद दिन के हालात हैं, ये तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं और मेरी माँ चाहती हैं कि बच्चे नेक हो और अच्छे हो, फर्माबरदार हो, तो मेरी माए, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों की तरबियत की तालीम की फिक्र करने की जरूरत, उनको अच्छी तालीम देने की जरूरत, उनको कुरान सिखाने की जरूरत, उनको सीरत सिखाने की जरूरत, उनको अच्छे अखलाक सिखाने की जरूरत। और जब बच्चा अच्छी चीजें सारी सीख ले और कुरान का इल्म सीख ले, अपने बच्चों को असरी उलूम सिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, पायलट बनाओ, आईपीएस बनाओ और अच्छे ओहदों पर पहुंचाओ। कोई मना नहीं करता है, बल्कि हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन, और मैं ये जहां जा रहा हूं, ये पैगाम दे रहा हूं, अपने नौजवानों को बता रहा हूं, माओ को बता रहा हूं, बच्चों को बता रहा हूं कि अगर तुम इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो तालीम से अपने रिश्ते को छोड़ लो। आपका रिश्ता तालीम से जुड़ जाए, आपका रिश्ता तालीम से जुड़ जाए। हमारे गैर मुस्लिम भाई अपने
अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए किस अंदाज की कुर्बानियां दे देते हैं। बाप मजदूरी कर रहा है और माँ तरह तरह की परेशानियां झेलती है, लेकिन बच्चे की तालीम चाहती है। वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ ले, इसकी जिंदगी में कुरान आ जाए, इसकी जिंदगी में अच्छी तौर तरीक आ जाए, इसकी जिंदगी अच्छे नहज पर चलने वाली बन जाए। ए मेरी माए, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हो, खुदा की कसम तालीम से कनेक्शन जोड़ लो। अपने इन बच्चों के हाथों में जहां मोबाइल हम लोग थमाते हैं, इनके हाथ में बस्ता हो, किताब हो, कोर्स हो, कलम हो, दवात हो। अगर हमारी कौम के नौजवानों का, हमारे बच्चों का कनेक्शन इन चीजों से जुड़ जाएगा तो कोई नाकाम होने वाला नहीं, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लेकिन हाल क्या बना हुआ है मेरे भाइयों, हम मुसलमानों के गांवों में जो स्कूल होते हैं, स्कूल वाले शिकायत करते हैं कि फीस नहीं दी जा रही है, बच्चे फीस नहीं देते हैं। मालूम किया जाता है कि फीस क्यों नहीं मिल पा रही है, इसलिए कि बाप मुलाजमत तो कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन हर महीने अपने मोबाइल में 300 350 का रिचार्ज करा रहा है, अपनी बीवी के मोबाइल में करा रहा है, लेकिन 200 100 500 रुपए की फीस वो स्कूल में नहीं दे सकता है, मदरसे में नहीं दे सकता है। आप चाहिए हमारे बेआदराने वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई, एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, 450 कमाता है। मेरी एक मजदूर से मुलाकात हुई, गैर मुस्लिम मेरा भाई, मैंने उससे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने बताया मुफ्ती साहब मेरे 4 बच्चे हैं और मैं उन बच्चों को तालीम दे रहा हूं, उनको पढ़ाता हूं। मैंने कहा 400-500 कमा रहे हो, कैसे पढ़ाते हो, कैसे तुम कोर्स ड्रेस और फीस उनको दिला देते हो? तो उसने क्या कहा, ए कोलंबो के नौजवानों, ए कोलंबो के मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, सुनने वाली बात है। वो मेरा गैर मुस्लिम भाई ये कहता है कि हम समझते हैं अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो इनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, हम तो मजदूरी करके इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरी बीवी भी ये कहती है कि बच्चों को पढ़ा लो, हम तो मजदूरी मुसीबत कूट कर चले जाएंगे। लेकिन ये आने वाली नस्ल, ये बच्चे कामयाब हो जाएं, आईपीएस बन जाएं, डीएम एसटीएम बन जाएं, अच्छे ओहदों पर पहुंच जाएं, लेकिन मेरी कौम का नौजवान, मेरी कौम के बुजुर्ग कहां सोच रहे हैं, कहां समझ रहे हैं? हाँ, मेरी कौम के नौजवानों पर झगड़ा करने के लिए जमीनों को बेचना आसान है, मुकद्दमात में पैसा लगाना आसान है, अपनी मूंछों को नीचा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हम कौम के चौधरी हैं, हम कौम के जिम्मेदार हैं, हमारे पास में 10 बीघे जमीन है। एक कौम के नौजवानों, एक कौम के चौधरियों और जिम्मेदारों, खुदा की कसम सीखो, आप देखो और समझो। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले बहुत सारी कौम हमारे यहाँ ऐसी रहती कि जो हमारे पास में मिलने के लिए आते, हमारी चारपाई पर नहीं बैठते, चौधरी साहब की चारपाई पर नहीं बैठते, जमीन पर बैठ जाया करते, इसलिए कि चौधरी साहब चारपाई पर बैठे हुए हैं, सरहाने ये पाई थी बैठना बहुत बड़ी बात, जमीन पर बैठ जाया करते थे। लेकिन उस कौम ने क्या समझा, उस कौम ने ये जाना कि हमारी तरक्की तालीम में है, हमारी तरक्की एजुकेशन में है, हमारी तरक्की कलम में है, हमारी तरक्की किताबों में है, हमारी तरक्की कोर्स में है। हमारा बच्चा उसी वक्त में कामयाबी और इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है कि जब इसकी जिंदगी में तालीम होगी। लेकिन हाल क्या हो गया है मेरे भाइयों के, जो कौम तरक्की कर रही थी, जो कौम बुलंदी की तरफ जा रही थी और जो कौम अपने आप को बुलंद समझ रही थी, लेकिन वो कौम चौधराहट के चक्कर में लगी रही, उस कौम के बच्चे जाहिर रहे। और जो कौम अपने आप को इस तरह समझती रही, उस कौम ने अपने बच्चों
को पढ़ाया, पढ़ाकर आला अच्छे ओहदे पर पहुंचा दिया। आज मेरे भाइयों उस कौम के कितने नौजवान आपको आईपीएस मिल जाएंगे, कितने नौजवान कचहरी के अंदर बैठे हुए मिल जाएंगे, थाने और तहसीलों में मिल जाएंगे, कोर्ट के अंदर मिल जाएंगे। कितने बच्चे वकील बन गए, कितने बच्चे जज बन गए। हाँ, जो 15-20 साल पहले जो चौधरी अपनी चारपाई पर नहीं बैठने देता था, आज वो चौधरी अपने आप को जो चौधरी समझ रहा था, जिम्मेदार समझ रहा था, कौम का ठेकेदार समझ रहा था, जो जहालत में पड़ा हुआ था, गंदगी में पड़ा हुआ था, गलाजत में पड़ा हुआ था, आज वो कौम तालीम के न होने की वजह से बस्ती में पड़ी हुई है। और जिस कौम ने अपने ताल्लुक तालीम से जोड़ लिया, वो कौम कुर्सियों पर बैठ गई है। ये कौम नीचे पहुंच चुकी है। एक दस्तखत के लिए, एक साइन के लिए, एक सिग्नेचर के लिए ये कौम लजाजत कर रही है और फरियाद कर रही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जमीन का सवाल है, मकान का सवाल है। हमारे बच्चों की जिंदगी आप बचाइए, आपके हाथ में है। ए मेरी कौम के नौजवानों, ये दिल का टुकड़ा है, ये दिल का दर्द है जो आपको सुना रहा हूं। अपनी कौम को अगर तरक्की देना चाहते हो मेरे भाइयों, पढ़ाओ, तालीम से जोड़ो, स्कूलों से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो। अपने बच्चों की तालीम में अपनी कामयाबी समझो। अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा देखना चाहते हो तो इनको तालीम से मजबूती के साथ जोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि आपके और हमारे बच्चे जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएंगे और अच्छे मकाम इनको मिल जाएगा, कामयाबी इनको मिलेगी, कामयाबी इनके कदम चूमेगी। इसलिए मेरे अजीजों, मुझे लंबी बात न करनी है, न करने का मौका है। ये बात जो दिल में थी आपको सुनाई, बस आपसे यही कह रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो, हालात को समझो, वक्त की नजाकत को जानो। हमें जरूरत है कि जिस तरह हमें मस्जिद के इमाम की जरूरत, हमें जरूरत कि हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले, अच्छे मकाम पर पहुंच जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा वकील बन जाए, और हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे अच्छे बच्चे पहुंच जाएं। इन तमाम चीजों की हमें जरूरत है, सख्त जरूरत है। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब तालीम दीजिए। और मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हाई स्कूल किया, इंटर किया, अपनी तालीम को मुनक़ते कर दिया, ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरी भाइयों, अपने आप को तालीम के हवाले करो। रात की तारीकी में पढ़ो, दिन के उछाले में पढ़ो, कौम के लिए पढ़ो, समाज के लिए पढ़ो, समाज की सेवा के लिए पढ़ो। आपके ज़हनो दिमाग में ये जज्बा होना चाहिए, हमें कौम की सेवा करनी है, हमें समाज की सेवा करनी है। ये तालीम अगर हम हासिल करेंगे, हमारे पास में तालीम हो गई तो हम समाज की सेवा तभी तो कर सकते हैं। और हमारे पास में अगर तालीम नहीं है तो हम समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। ए मेरे भाइयों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये दरखास्त कर रहा हूं, आपका अपना ये दरखास्त कर रहा है, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब तालीम दो और उनको बताओ कि तुम्हारी कामयाबी तालीम में है। ये बात उनको बता दो, पढ़ा दो, सिखा दो। हाल ये है, हम इदारा चलाते हैं, बच्चों के दाखिले के लिए अगर माँ बाप को बुलाया जाए कि आप मदरसे में आ जाओ, तो माँ बाप को फुर्सत नहीं, बाप के पास टाइम नहीं। आधार कार्ड बच्चे का अपना बच्चे के हाथ भिजवा दिया और समझा कि दाखिला मदरसे में हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, हाँ, ये मदरसे वाले आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, लेकिन आप
तालीम के साथ में खिलवाड़ मत करो। मदरसे में जाओ, स्कूल में जाओ, पूछो हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा है, कहां तक तालीम हासिल की है। एक हमारे गैर मुस्लिम भाई IPS बने, मेहनत करके, बाप ने मेहनत की, बाप रक्षा चलाने वाला, बाप रक्षा चलाने वाला, लेकिन बच्चे का जज्बा और बच्चे के शौक, बच्चे के जज्बे को सलाम। उस नौजवान ने तालीम किस अंदाज से हासिल की, ये बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बहुत से मेरी कौम के नौजवान ये कहते हैं कि हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हमें कहां नौकरी मिलेगी, कहां हम अच्छी मुलाजमत हासिल कर पाएंगे। नहीं, अगर आप पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे तो कामयाबी आपके कदमों में आकर गिरेगी। खुदा की कसम, वो रक्षा चलाने वाले का बेटा जिसका जज्बा ये था कि मैं IPS बनूं, बाप के पास पैसा नहीं कि अपने बेटे को पढ़ाए, बाप बच्चे ने अपने गांव को छोड़ा, दिल्ली में एक कमरा किराए पर लिया और साथ साथ में IPS की तैयारी करते रहे और एक जगह पर वो मुलाजमत करते रहे, मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। उस नौजवान ने कोशिश करके अपने आप को उस मकाम तक पहुंचा लिया कि उसको अब इंटरव्यू देने के लिए जाना है। IPS का पहला इम्तिहान कामयाबी से मेरे भाइयों वो 2-4 हो चुका है, कामयाब हो चुका है। दूसरा इम्तिहान उसको देने के लिए जाना है, उसके लिए ड्रेस नहीं, उसके पास में अपने जूते नहीं जिसको पहनकर उसको वहां पर जाना है। उस नौजवान ने अपनी बहन को फोन किया कि मेरा पहला इम्तिहान मैं पास कर चुका हूं, दूसरे इम्तिहान में मुझे जाना है, मेरे पास में इतने पैसे नहीं, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं कि मेरे वालिद मुझे ड्रेस दिला सके, मुझे वो कोट पैंट बना सके जिसको पहनकर मुझे इम्तिहान देने के लिए जाना है। भाई ने बहन को फोन किया, बहन के खाइंद ने, बहन के शोहर ने अपनी शरीके हयात को अपने एड्रेस ऑन कराने के लिए मेरे अजीजों 2000 रुपए दिए। भाई ने जब फोन किया, बहन बर्दाश्त न कर सकी कि मेरे भाई कामयाबी चाहता है, मेरा भाई अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहता है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। 2000 रुपए उसको डॉक्टर के दिखाने के लिए दिए थे, लेकिन अजीजों और दीनी भाइयों, उसने 2000 रुपए अपने भाई के हवाले कर दिए कि लो तुम्हें जो करना है कर लीजिए। उसके पास साथी जूते नहीं, अपने दोस्त से उसने, मेरे नौजवान ने, मेरे भाई ने जूते मांगे और जूतों को पहनकर, ड्रेस पहनकर, कोट पैंट पहनकर वो इम्तिहान देने के लिए नौजवान चला जाता है। ए मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा की कसम उसको इस मकाम तक पहुंचने के लिए कैसे हालात से 2-4 होना पड़ा होगा। वो अपनी कहानी बताते हुए एक मर्तबा की बात बताकर रोने लगते हैं कि एक दिन की बात थी, मेरा ताल्लुक एक मालदार के साहबजादे से हो गया था, मेरी दोस्ती हो गई। वो मालदार था, मैं उसके पास रहता था, उसके साथ में खेलता था। एक दिन हुआ ये कि वो मेरे साथ खेल रहा था, उसके बाप ने ये कहा कि तुम इसके साथ न खेला करो, ये गरीब बाप की औलाद है, ये गरीब बाप का बेटा, ये इसका बाप रक्षा चलाता है, गरीब बाप की औलाद है, तुम्हें इससे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहिए। उस नौजवान से बताया कि मेरे वालिद मोहतरम ये बात कह रहे हैं, दिल टूटा, आंखों में आंसू आए, बर्दाश्त किया, लेकिन एक मंजिल सामने थी कि मुझे ये बनना है, मुझे इस मकाम पर पहुंचना है। उस नौजवान ने दूसरे इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के नौजवानों और मेरे भाइयों, अगर आपके सीनों में धड़कता दिल है, खुदा की कसम उस नौजवान ने क्या करके दिखाया, वो करके दिखाया कि जिस नौजवान का बाप रक्षा चला रहा है, लेकिन उसका बेटा IPS बन चुका है, कामयाब हो चुका है। जब मालूम यह हुआ कि फुला का बच्चा
काफिला का लख्त जगर कामयाब बन चुका है। वो अपनी इस गांव और अपनी बस्ती की सर से अपने बस्ती में आता है, अपनी जमीन पर आता है। जिस बाप ने ये कहा था कि इससे तुम्हें अपने रिश्ते को नहीं छोड़ना है, अपने ताल्लुक को नहीं छोड़ना है, वही और न जाने उसके अलावा कितने अफराद ऐसे गांव में, गांव के बाहर उसके लिए हार लेकर, माला लेकर खड़े हुए हैं कि हाँ ये हमारी बस्ती का नौजवान कामयाब हो चुका है, इसने अच्छा काम किया है, मेहनत की है। ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, अगर तालीम हासिल करोगे, पढ़ोगे, अच्छी तालीम हासिल करोगे तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा, दुनिया में भी कामयाबी अता करेगा, आखिरत में भी कामयाबी अल्लाह आपको अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन चंद बातों पर जो कही गई है अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहे कुरान और हदीस के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।